Hello everyone. This side Poonam Grover from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar program. Today today I came with lecture number 8, which are came under Unit 2, and that is your subject is digital system design, which is that chapter is very important for both CSC and electrical 6th semester student. So today I cover various topic. One is called your various process statement, if else if statement, case, exit, null or loop statement, while, next or assertion statement. So as per the your if else if statement, an if statement selects a sequence of statement for execution based on the value of condition. The condition can be any expression that evaluate to a boolean value. The general form of an if statement is if if boolean expression, that is a syntax for your if statement. If statement can do its work when some condition must be proved. Clear? After the condition proved, you can came with your next statement, or you can say either go for your else if statement. So that is a combination of your if, only if else if statement. So here, that is a syntax for your if else if statement. Here we can use if boolean expression. We check the condition as per the boolean expression. If the boolean expression becomes true, in that case your sequential statement can execute its operation from right to your left object. Okay? Else if, then again some boolean expression right here, then you check again a condition. If that condition must prove, or you can say must true, then the statement which are came under your else if statement, that will be executed. So else goes, then again your sequential statement, and last, if you start the particular if statement from if, then again you write at the end is and if. So here we show one example which are based upon your if else statement. The if statement is executed by checking each condition sequentially until the first true condition is found. यानी कि इसमें हम क्या करेंगे कि if के अंदर हमने कुछ boolean expression लिखा है या कुछ condition specify की है, जब तक वो condition की value true नहीं हो जाती, तब तक देन हम क्या करेंगे, जो sequential statement लिखी हुई है वो बार बार execute होती रहेगी. जैसे ये condition आपकी true हो जाएगी, आप इस कंडीशन से क्या आ जाओगे, बाहर आ जाओगे. क्लियर? तो उसने ये चीज कही हुई है, इफ सम इज लेस देन इक्वल टू 100, देन यू डू द ऑपरेशन सम प्लस 10. ठीक है? एंड लास्ट sum plus 10, that will be in the looping manner. ठीक है? That instruction must be executed again and again. If the condition must true, it means the sum is less than equal to 100. When the sum is greater than 100, in that case you will be come out from your if statement. ठीक है? The if statement can have zero or more else if clause. if के अंदर एक if भी हो सकता है या more than else statement भी हम use कर सकते हैं. An if statement is also sequential statement, and therefore the previous syntax allow for arbitrary nesting of if statement. Here an example we can show, that is if Nikhil in, then that will be deposit the rupees total 10. ठीक है? और अगर आपका निखिल जो निखिल है उसने कुछ रुपीस एंटर डिपॉजिट करवाने हैं, जब तक उनकी इनकी जितने उसकी अप्रोक्सीमेशन लिमिट होगी इन करने की, वो तब तक इन करवाता रहेगा. जैसे ही वो अप्रोक्सीमेशन लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, वैसे ही वो एल्स डायमिन करके उस स्टेटमेंट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा. Then we show here also one example, that is deposit total 15, that is a quarter else if, then again you can use, it means here we can use the nesting of your if else if statement. Clear? And here we also use one, you can say example with the help of your mux statement. We are having 4:1 mux, in which having 4 input and 1 output, and 2 is your select lines. So if you can write the equation here, that is if control 1 and control 2, because we can say that you are using 4:1 mux. So according to 4:1 mux stand for a multiplexer. अगर आप मक्स के अंदर काम कर रहे हैं तो मक्स के अंदर 4 इनपुट होती हैं, एक आउटपुट होती है, और आपकी कितनी सेलेक्ट लाइन्स होंगी, 2 सेलेक्ट लाइन्स होंगी. क्लियर? ठीक है? तो एज पर दी 2 सेलेक्ट लाइन्स को उसने क्या बोला है, कंट्रोल 1 एंड कंट्रोल 2. तो आपने उसके ऊपर लॉजिक क्या दिया है, 1 0. आप लॉजिक स्टार्ट करते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप यहीं से एंड इफ के थ्रू बाहर आ जाओगे. लेकिन अगर
ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, देन एल्स नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो वो हर बार इनकी वैल्यूज को क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा मक्स आउट की वैल्यू को। जैसे मान लो कि अगर आपने सिलेक्ट लाइन्स की जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट पे क्या होगी आपकी, ट्रांसफर होगी। क्लियर। तो उसने ये लिखा हुआ है अगर आपका कंट्रोल जो इनपुट है वो 1 है और कंट्रोल इफ कंट्रोल टू इनपुट जो है वो आपकी क्या है, 0 है, तो 1 0 पे क्या होगा आपका, देन मक्स आउट की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि 1 0 पे आप किसके अंदर आते हो, 2 के अंदर आते हो। 2 को अगर बाइनरी फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 0 1 0 0। एल्स अगर ये नहीं होता है तो आप 1 को आउटपुट पे क्या करवा दोगे, डिस्प्ले करवा दोगे। क्लियर। ये 1 है, ये आपका 2 है और ये वाला क्या है, 1 है। देन एंड इफ, अगली बार वो चेक करता है एल्स इफ कंट्रोल टू इज 0, अगर कंट्रोल टू 0 है, यानी कि हम वहां देखेंगे जहाँ कंट्रोल टू की वैल्यू 0 आती है, तो कंट्रोल टू की वैल्यू आपकी दो वैल्यू पे 0 आ रही है, एक तो 1 पे आ रही है और एक आपकी किस पे आ रही है, अगर देखा जाए तो दैट विल बी, एक तो 1 पे आ रही है और एक 2 पे आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट से ये चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। क्लियर। ठीक है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि आपने जो भी इनपुट को आउटपुट पे डिस्प्ले करवाना है उस इनपुट के लिए पर्टिकुलर लॉजिक को चेक किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो लॉजिक के अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट बनती होगी वो आउटपुट पे क्या होगी आपकी, डिस्प्ले होगी। क्लियर। मैंने एक और भी एग्जांपल नॉर गेट का शो किया हुआ है, in which we can declare the entity for an node 2 gate. So as we will know about what is the function of a node gate, that is the inverse of your OR gate. So according to NOR gate symbol, we can use two ports A and B as an input and Z as an output. Clear? So here we declare the entity. Clear? We can clear that particular example with the help of process plus if else if statement. So we can use that example, we can discussion in detail. Here we use port having two input, one is called your A, another one is called your B. So A and B is called your input and Z is called your output, and node 2. So that part, as we were very well known about, that is entity declaration part. Again, that NOR gate, that part only give me your port information, that node give any functionality of that particular node gate. So the functionality must be clear with the help of your architecture. So here we mention the keyword architecture, किसका बनाना है, node 2 of node 2 is, then we start the symbol with your begin, that is the syntax for writing your architecture body. Clear. ठीक है। तो here we also use, you can use the process statement, you can also write behavior node 2 architecture node 2 behavioral of node 2 is, because in which we can use the process statement, and the process statement is always used in your behavioral modeling style. So here we also mention architecture node 2, नोड 2 के बाद क्या करेंगे आप, नोड 2, नोड 2 के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे बिहेवियर वर्ड लिखेंगे जिससे पता चल जाएगा कि आप मॉडलिंग किस स्टाइल से करनी है। देन आपने प्रोसेस लगाया, किसके ऊपर लगाया, इन बिट के ऊपर। आपने उस पर्टिकुलर बिट को ए बी के अंदर एलिमेंट की फॉर्म में क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड योर सेंसिटिविटी लिस्ट। क्लियर। आपने दो कांस्टेंट डिक्लेयर करवाए हुए हैं, राइज टाइम एंड फॉल टाइम के अकॉर्डिंग। तो आपका राइज टाइम को आपने वैल्यू दी हुई है 10 नैनो सेकेंड विद द हेल्प ऑफ योर वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर, and the fall time को value दी हुई है 5 nanosecond. It means during simulation we can change the value because we can use the variable assignment operator. Clear. Here we also use one more operator that is called a temp, which is your bed time. Clear. So temp can be assigning with your final value. So here we draw the symbol, we see the symbol that is node 2 having no note of your NOR gate. So here we use if temp is 1, we specify the condition for the temp. Here the temp is assigning the value with your A NOR B. ठीक है। अगर आप यहाँ लिखना चाहते हो तो आप Z भी लिख सकते थे यहाँ पे, Z, क्योंकि आउटपुट क्या आ रही है Z, तो Z को किसकी वैल्यू जा रही है, A NOR B। आपका फंक्शन ये बनता है। लेकिन आपने temp का वेरिएबल असाइन करवा रखा है, तो आप चेक करेंगे इफ temp is 1, अगर तो temp 1 है देन क्या होगा, जेड को आप एक जो
जेड है, जेड आपका फाइनल आउटपुट है, जेड आपकी फाइनल आउटपुट है, उससे पहले आपने एक टेम्प का नाम का एक वेरिएबल डिसाइड किया है। इट मीन टेम्प की वैल्यू किसको जाएगी, आपके जेड को जाएगी। इट मीन टेम्प वर्ड हमने यहाँ पे आपकी इफ और एल्स इफ को क्लियर करने के लिए यूज किया हुआ है। ठीक है, तो टेम्प चेक करोगे, इफ द टेम्प इज 1 देन जेड को वैल्यू असाइन होगी एज पर द राइज टाइम। अगर टेम्प 1 नहीं है, इट मीन वो 0 है, तो टेम्प को वैल्यू असाइन होगी आपकी फोल टाइम की। क्लियर, क्योंकि अगर आप नोर गेट के अंदर काम कर रहे हैं तो नोर गेट में क्या होता है, दैट इज द रिवर्स ऑफ योर और गेट। तो आपकी टेबल कैसे बनेगी, अगर आप और गेट की टेबल पढ़ते हैं तो दैट इज ए प्लस बी, 0 0 0 1 1 0 1 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 एंड 1 1 पे 1 1 पे अगेन 1। तो आपकी टेबल आती है 0 1 1 1 फॉर एवरी केस। अगर इसका रिवर्स करोगे तो क्या आएगी, 1 0 0 0 फॉर योर नोर गेट। तो उसके अकॉर्डिंग की कंडीशन चेक करेगा कि आउटपुट पे 1 आ रहा है या आउटपुट पे 0 आ रहा है। अगर तो 1 आ रहा है तो वो राइस टाइम में जाएगा, अगर वो 0 आ रहा है तो किस में जाएगा, फॉल टाइम में। ठीक है, तो अगर 1 आ रहा है तो 1 वैल्यू टेम्प के थ्रू किसको असाइन हो जाएगी, आपकी फाइनल आउटपुट जेड को। अगेन अगर वो टेम्प आपका 0 आ रहा है तो 0 वैल्यू आपके टेम्प के थ्रू किसको असाइन हो जाएगी, z को। It means we can use the variable through which you can done the phenomena of your if else if statement. उसके बाद आपने प्रोसेस को एक लेबल से स्टार्ट करवाया है, दैट इज P1 लेबल। उसी लेबल से आप उसको एंड करेंगे, देन लास्ट में आप क्या यूज करेंगे, एंड नोट टू। Here we use the case statement. What do you mean by case statement? We can write the expression for your case statement, that is case can be depend upon your number of choices. So number of choices come under you with your branch 1, branch 2 and up to so on. It means आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ चॉइसेस को यूज कर सकते हैं। लास्ट में अगर आपने केस को जिस एक्सप्रेशन से शुरू करवाया है इन द प्रोसेस स्टेटमेंट, सो अब मैं जो भी स्टेटमेंट करवाऊंगी लाइक इफ एल्स इफ स्टेटमेंट or you can say case next loop, that will be came under with your process statement, or you can say behavior style modeling। ठीक है, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी शेयर किया हुआ है। आपने क्या किया, द केस स्टेटमेंट सिलेक्ट्स ऑफ द ब्रांचेस फॉर एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। क्लियर, तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू के अकॉर्डिंग इनमें से कोई ना कोई ब्रांच को क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी और आउटपुट पे क्या करवाएंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ योर एक्सप्रेशन। द एक्सप्रेशन वैल्यू मस्ट बी डिस्क्रीट टाइप और वन डायमेंशनल type. So choices may be expressed as single value, as a range of value, or by using the other clause. So here we write one example, that is if आपने क्या किया, आपने केस डे के ऊपर लगाया। ठीक है, तो डे हमारे क्या होते हैं, मंडे से लेकर संडे तक। क्लियर, तो मंडे में आपने ट्यूसडे को, ठीक है, पॉकेट मनी कितनी असाइन की है, 6 विद द हेल्प ऑफ योर वेरिएबल। इट मीन ट्यूसडे को आपको 6 एज ए पॉकेट मनी असाइन हुई है, और मंडे और वेडनेसडे को कितनी असाइन हुई है, 2। व्हेन, अगर वही सेम चीज है कि आपने हर एक दिन में अलग अलग रुपीज क्या किए हुए हैं, नंबर को असाइन किए हुए हैं, लेकिन जिस जिस डे को जिस जो रुपीज असाइन किए हुए हैं दैट विल बी केम अंडर विद योर चॉइस। ठीक है, आपकी चॉइस क्या है, ट्यूसडे जाना है, मंडे वेडनेसडे जाना है, फ्राइडे टू संडे जाना है, या फिर आप अदर्स के अंदर जाना चाहते हो। तो अगर आप इनमें से किसी में भी नहीं आ रहे तो अदर्स को वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी, 0। इट मीन्स आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग you can assign the pocket money with different value and by the use of your variable assignment operator। ठीक है, so last one you can write here and day case भी लिख सकते हो या simple and case भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने एज पर दी लॉजिक सर्किट के अकॉर्डिंग केस स्टेटमेंट को क्लियर किया है। वो कैसे किया है, अगर आपने मक्स 4:1 बनाना हो, मक्स 10 फॉर मल्टीप्लेक्सर, तो आप कैसे बनाएंगे, मक्स के पास 4 इनपुट है, कौन कौन सी, ए बी सी डी। ठीक है, वो आपकी क्या है, इनबिट है। अगर 4 इनपुट हैं, टू रेस्ट पावर 2 इजिकल टू 4। ठीक है, टू रेस्ट पावर एन, एन इजिकल टू क्या है, 2 आया है। तो जो एन की वैल्यू है दैट विल बी यूज एन कंट्रोल लाइन इन योर mux। Clear, so as per the logic of your control lines you can select the particular input and transfer to your output। it means अगर अगर कंट्रोल लाइन की वैल्यू 0 0 है तो A आपका Z को जाएगा, अगर 0 1 है तो B आपका Z को जाएगा, अगर 1 0 है तो C आपका Z को जाएगा, अगर 1 1 है तो आपका D आपका Z को जाएगा। so you can assigning the number of value as per the logic of your control lines। here we can write the that part is called your entity declaration and you can came with your architecture part। आर्किटेक्चर में आप किस स्टाइल से मोल्डिंग कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं,
आर्किटेक्चर मार्क्स किससे कर रहे हैं, बिहेवियर से, ऑफ मार्क्स इज, क्लियर है। कांस्टेंट में जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है वो कितने टाइम में होगा, कि आपकी ए वैल्यू कितने टाइम में जेड पे जाएगी, बी वैल्यू कितने टाइम में जानी चाहिए। तो आपने कांस्टेंट डिले की फॉर्म में एक वेरिएबल पहले से असाइन करवा दिया कि पर्टिकुलर वैल्यू आपकी 10 नैनो सेकंड पे क्या होगी, ट्रांसफर होगी। अब आप क्या करोगे, आप प्रोसेस स्टेटमेंट के अंदर उन एलिमेंट्स और उन सिग्नल की वैल्यू डालोगे जो आपके लेटर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में बार बार चेंज हो रहे हैं, या कैन से जिसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। और मैंने अगेन आपका यहाँ पे जेड क्या है आपका, हाँ लाइक आउटपुट वेरिएबल है, तो जेड को आपने जेड से पहले जेड को फाइनल वैल्यू देने से पहले जेड की जगह आपने टेम्प नाम का एक वेरिएबल क्या करवा लिया, डिक्लेयर करवा लिया। यानी कि जेड के साथ आप ब्रैकेट में अगर टेम्प लिख देंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स क्या होगा कि पहले वैल्यू टेम्प को जाएगी, फिर टेम्प से किसको जाएगी, आपके जेड को जाएगी। तो आपने नंबर ऑफ केसेस बना रखे हैं, वो केसेस कैसे बनेंगे, आपने कंट्रोल लाइन के ऊपर केसेस बनाए, केस किसके ऊपर लगेगा, कंट्रोल पे, और कंट्रोल लाइन कितनी है, 1 एंड 2। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, कंट्रोल लाइन फ्रॉम 0 to 1, ये बिट वेक्टर है, इसमें से अगर कंट्रोल लाइन आपकी 3 है तो आप 3 की फॉर्म में क्या लिखोगे, 0 to 2। इट मीन्स यहाँ पे एज पर द बिट वेक्टर आप लिखोगे कंट्रोल 0 एंड कंट्रोल 1, क्लियर। ठीक है, तो आपने कंट्रोल लाइंस लिखी हैं, तो कंट्रोल लाइन 0 एंड 1, हेयर कंट्रोल लाइन 0 1, कंट्रोल लाइन 0 1, कंट्रोल लाइन 0 1। सो कंट्रोल लाइन 0 1 की वैल्यू क्या है, 0 0 पे आपका ए जो है वो टेम्प को असाइन होगा, फिर 0 1 पे आपका बी असाइन होगा टेम्प को, और 1 0 पे आपका सी असाइन होगा, और 1 1 पे आपका डी असाइन होगा। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ वैल्यूज को किसको असाइन करवा दोगे, टेम्प को। अब अगर आप इसमें ऐड करना चाहो तो वही टेम्प की वैल्यू किसको असाइन करवा सकते हैं आप, z को। सो दैट इज अ फाइनल ऑपरेशन विच कैन बी came under with your case statement, and the case statement execute the particular type of input value to your output as per the choice, either 0 0 0 1 1 0 and 1 1। so I think आपको इन स्टेटमेंट्स के बारे में अच्छे से पता चल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन कम विद योर null statement. What do you mean by null statement? If it is a sequential statement that does not cause any action to take place and execution continue with the next statement, one example of this statement use in if statement or in case statement, where for certain condition it may be useful or necessary to explicitly specify no action needs to be performed. It means अगर आप प्रोग्राम करते करते और बीच में कहीं नल दे देते हो, इस नल देने से क्या होगा कि नल देने के बाद उसके बाद जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी या जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स होंगी दैट नॉट बी एग्जीक्यूटेड, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट you can came with your loop statement. What do you mean by loop statement? A loop statement is used to iterate through a set of sequential statement. अब लूप क्या होता है, किसी बॉडी के ऊपर लगाना। अगर आप CSC के स्टूडेंट हो तो आप वेरी वेल नोन अबाउट होगे व्हाट डू यू मीन बाय लूप इन योर C and C++ प्रोग्रामिंग। लूप में क्या होता है, दैट स्टेटमेंट विल बी इन द रोटेशन मैनर, और यू कैन से इन लूपिंग मैनर। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा, उस लूप के थ्रू आप आइट्रेशन लूप के अंदर चले जाते हो, और आइट्रेशन में वो लूप तब तक चलता है जब तक वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या नहीं हो जाती, ट्रू नहीं हो जाती। और कंडीशन ट्रू होने पर आप उस स्टेटमेंट को क्या करोगे, कंडीशन ट्रू होने तक जितनी भी सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है जो आपकी लूप के अंदर आ रही हैं वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे ही आप उस पर्टिकुलर फाइनल वैल्यू पे पहुंच जाओगे तब आप लूप से क्या आ जाओगे, बाहर आ जाओगे। तो जिस लेबल से उसको स्टार्ट किया था उसी लेबल से हम उसका क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। सो दैट इज अ सिंटेक्स फॉर योर loop statement. Here we can write the loop label, say we can use loop label L1। आइट्रेशन स्कीम होगी इसके अंदर, आइट्रेशन स्कीम क्या होगी, सपोज कीजिए कि सम इज लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, जब तक सम की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है तब तक जो भी सिक्वेंशियल स्टेटमेंट यहाँ होगी, सपोज करो कि सम में हर बार हम कुछ ना कुछ ऐड करवाते जा रहे हैं तो उस फंक्शन वो बार बार ऐड होता रहेगा। और कब तक ऐड होगा, जब तक सम की वैल्यू क्या है आपकी, लेस देन 100 है। और जैसे ही सम की वैल्यू ग्रेटर देन 100 होगी आप लूप से क्या आ जाओगे, बाहर आ जाओगे, क्लियर। लास्ट में क्या करोगे आप, एंड लूप, और जिस लूप को जिस लेबल से स्टार्ट करवाया था उसी लेबल से लूप क्या हो जाएगा आपका, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो लूप की जगह आप फॉर आइडेंटिफायर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब लूप में जैसे एक एज ए लूप तो आपने लगाया है, किस पे लगाया, जैसे आपने एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, दैट इज आल्सो केम विद योर आइटरेशन स्कीम।
आपने लूप किसके ऊपर लगाया, जैसे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की आपने एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाया जिसको आपने वन वैल्यू विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू क्या कर रखी है, असाइन कर रखी है, ठीक है। अब फॉर लूप जो है वो एक तरह दैट इज अ टाइप ऑफ लूप, और यू कैन से आइडेंटिफायर ऑफ योर लूप। फॉर लूप लगाया नंबर के ऊपर, कब तक चलेगा नंबर, 2 टू एन लूप, क्लियर। तो फैक्टोरियल को हर बार फैक्टोरियल होके वो नंबर आपके फैक्टोरियल को असाइन होता रहेगा जब तक का आप क्या, आपकी वैल्यू क्या इक्वल टू यानी कि लेस देन एन है। जैसे ही आपकी वैल्यू ग्रेटर देन एन आएगी आप लूप से क्या आ जाओगे, बाहर आ जाओगे। सो द बॉडी फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड एन माइनस वन टाइम, क्लियर, विद द लूप आइडेंटिफायर नंबर बीइंग इंक्रीमेंट बाय वन एट ईच आइट्रेशन। इट मीन्स क्या होगा कि जो फैक्टोरियल में होगा जैसे जैसे लूप चलता रहेगा कि जब तक लूप की वैल्यू क्या है एन माइनस वन से कम है तब तक आपका नंबर जो है वो हर बार इंक्रीमेंट होता रहेगा बाय वन, ठीक है। जैसे ही लूप की वैल्यू एन माइनस वन से ग्रेटर होगी आप लूप्स को क्या कर दोगे, एग्जिट कर दोगे, क्लियर। तो आप लूप से क्या आ जाओगे, बाहर आ जाओगे, ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट नंबर implicitly declared within the loop to belong the integer type whose value are in the range from 2 to n. No explicitly declaration for the loop identifier is therefore necessary. So the loop identifier also cannot be assigned any value inside the loop. If another variable within the same exists outside the for loop, then two variables are treated separately and the variable used inside the loop refers to the other variable, क्लियर। तो इस तरह आप लूप स्टेटमेंट को भी क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ फार आइडेंटिफायर के थ्रू भी लाइक एग्जीक्यूट करवा सकते हो। नेक्स्ट we can came with your while statement. So while is also part of your loop statement and that will be also wait for some boolean expression कंडीशन मस्ट बी ट्रू। तो इसके अंदर भी आइट्रेशन होती है तो वो किसी बुलियन एक्सप्रेशन का को चेक करेगा कि वेदर दैट बुलियन एक्सप्रेशन मस्ट ट्रू और नॉट। तो इसने लगाया हुआ है जैसे मान लो फर्स्ट कंडीशन में आपने लाइक एक छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है जिसमें आपने जे की वैल्यू को 0 असाइन कर रखा है और सम की वैल्यू को 10 असाइन कर रखा है, ठीक है। तो आपने लूप लगाया है वाइल लूप, वाइल लूप में आपने जे की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 20 लिख रखी है और साथ में लूप लगा रखा है, दैट इज अ वाइल लूप, ठीक है। तो जब तक जे की वैल्यू आपका जैसे सम को क्या कर रहा है, सम इनटू में मल्टीप्लाई विद 2 एंड जे इज इक्वल टू जे प्लस 3, लास्ट में क्या लिख रखा है एन 2। आप तब तक वाइल लूप के अंदर रहोगे जब तक आपकी जे की वैल्यू लेस देन 20 है। जैसे ही जे की वैल्यू आपकी 20 को एक्सीड कर जाएगी आप लूप से क्या आ जाओगे, बाहर आ जाओगे। तो उसने इसी कंडीशन में ये लिखा हुआ है द स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट, ठीक है। बॉडी के अंदर जो लूप स्टेटमेंट आपने यूज कर रखी है that are executed sequentially as long as loop condition j is less than true। जब तक ट्रू है यानी ट्रू मतलब कि जब तक ये लेस देन 20 है तब तक वो चलती रहेगी। एट दिस पॉइंट एग्जीक्यूशन कंटिन्यू विद इन द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप स्टेटमेंट। तो इसी जो ये स्टेटमेंट्स के थ्रू वो कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। एंड थर्ड एंड फाइनल एक और आइट्रेशन स्कीम का एग्जांपल मैंने शो कर रखा है यहाँ पे, दैट इज सम इज इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू 0। आपने एक लूप लगाया, वही सेम जे में आप हर बार 21 ऐड करवा रहे हो और सम को 10 से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो जब तक सम की वैल्यू ग्रेटर देन एग्जिट व्हेन द सम इज ग्रेटर देन 100। तो आप जैसे ही सम ग्रेटर देन 100 होगा आप उस लूप से क्या हो जाओगे, L2 लूप से क्या हो जाओगे, एग्जिट हो जाओगे। तो इसने एग्जांपल में क्या रखा है, द एग्जिट स्टेटमेंट causes the execution to jump out of the loop L2 when the sum becomes greater than 100। अब देखो डिफरेंट स्टाइल है, आपको एक कंडीशन अगर व्हेन की कंडीशन लिखनी चाहिए तो आप पहले भी लिख सकते थे लेकिन उसने लास्ट में लिखी। इट मीन्स पहले तब तक पहले वो लूप चलाएगा, वो लूप चलेगा, ठीक है, और लास्ट में जाके उसकी स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जिट व्हेन, यानी कि तभी लूप से बाहर आना है। जैसे आपने एक ऑपरेशन किया तो आप सम की वैल्यू को चेक करोगे, अगर तो वो ग्रेटर देन 100 है, ठीक है, तो आप लूप से बाहर आ जाओगे। लेकिन जब तक वो 100 से लेस रहेगी तो इसी लूप के थ्रू आप जे और सम के अंदर 21 प्लस ऐड करवाओगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 100 करोगे। सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ योर लूप स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ योर इफ एल्स इफ, or you can say number of iteration schemes which we can use here, and also we can share the example with the help of your four identifiers and you can say your while loop, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको लूप स्टेटमेंट का मतलब समझाने की कोशिश की है, ठीक है। देन यू कैन केम अंडर विद योर एग्जिट स्टेटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिट स्टेटमेंट, द एग्जिट स्टेटमेंट इज अ सीक्वेंशियल स्टेटमेंट that can be used only inside the loop।
ठीक है। अब वो लूप के अंदर यूज होती है, जैसे मैंने यहाँ बताया एग्जिट व्हेन सम इज ग्रेटर देन 100, तो लूप के अंदर यूज होगी जब भी यूज होगी। क्लियर? ठीक है। अब इट कॉजेज एग्जीक्यूशन ऑफ ए जंप आउट द इनर मोस्ट लूप और ए लूप हुज लेबल इज स्पेसिफाइड। द सिंटेक्स ऑफ एग्जिट स्टेटमेंट क्या है? एग्जिट के अंदर आपने लूप लेबल लिखा और व्हेन कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उस कंडीशन से क्या हो जाओगे आप? बाहर आ जाओगे। तो वही सेम एग्जांपल उसने शेयर कर रखा है। उसने सिंपली वहां पे L2 यूज कर रखा था, यहाँ पे L3 एक लूप चला दिया। अब वो कंडीशन इस लूप से कब बाहर आएगा? इफ सम, अगर सम की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है तो आप L3 लूप से क्या आ जाओगे? बाहर आ जाओगे, रादर देन L2 व्हिच वी कैन यूज इन योर प्रीवियस प्रोग्राम। ठीक है। तो लास्ट में अगर आपने इफ स्टार्ट करवाया था वो एंड इफ हो जाएगा, और लास्ट में उसी लूप का जिस लेवल से वो स्टार्ट हुआ था उसी लेवल से वो क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ठीक है। तो एग्जिट, दैट इज अ सिंटेक्स फॉर योर एग्जिट स्टेटमेंट, एंड हाउ वी कैन यूज इन a particular program we see by that particular programs. So here we also show one example for your exit statement, and in my previous slides we also show one example for your exit statement. तो आप किसी भी एग्जांपल्स के थ्रू उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी कैन कम विद द नेक्स्ट स्टेटमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय नेक्स्ट स्टेटमेंट? द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो अ सीक्वेंशियल स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द लूप. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, जो भी क्या होंगी आपकी लूप के अंदर यूज होंगी. द सिंटेक्स इज द सेम एज दैट फॉर एग्जिट स्टेटमेंट. इसका सिंटेक्स भी क्या होगा आपका? सेम होगा. ठीक है। तो इसमें भी मैंने क्या यूज कर रखा है कि आपने एक जे फॉर जे इज 10 डाउन टू 5 लूप. ठीक है। आपने जे के ऊपर एक लूप लगाया है। ठीक है। जिसमें आप इफ को, इफ की वैल्यू अगर टोटल सम से टोटल लेस देन टोटल है तो क्या करोगे आप? सम में +2 ऐड कर दोगे और वो वैल्यू आपकी सम को असाइन हो जाएगी. क्लियर? एल्सिफ अगर नहीं है तो टोटल सम आपका सम को चला जाएगा. इट मीन्स ये सेम वैल्यू आपके सम को असाइन हो जाएगी. ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं. ठीक है। अगर ये केस चलता रहता तो सही है. नेक्स्ट में आओगे तो एल्सिफ करके नल कर देना, उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी. क्लियर? ठीक है। एंड इफ, इट मीन्स ये आपकी प्रूवमेंट में नहीं आएंगी. सो द लास्ट स्टेटमेंट के इज गोज टू k+1 इज नॉट एग्जीक्यूटेड आफ्टर योर नल स्टेटमेंट. चाहे आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट लिखते जाओ, लेकिन अगर स्टेटमेंट में आपने नल लिख दिया तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी. क्लियर? ठीक है। इट मीन्स क्या है, आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू तो आ गए नेक्स्ट में, एल्स करने के बाद ये प्रोग्राम यही एंड हो गया. एल्स स्टेटमेंट में आना ही नहीं था आपने, लेकिन आपने नेक्स्ट यूज कर दिया बीच में, तो वो स्टेटमेंट यहीं पे क्या हो गई? एंड हो गई. मैंने सिंपली ये बताया है कि हाउ यू कैन यूज द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम. क्लियर? सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो end with your loop label when some specific condition becomes true, or you can say false as per your expression. ठीक है। तो मैंने आज की वीडियो में आपको नंबर ऑफ लाइक स्टेटमेंट्स कवर करने की कोशिश की है. ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू विद माय नेक्स्ट स्लाइड्स. सो टुडे इन माय लेक्चर आई विल एक्सप्लेन योर इफ एंड एल्स इफ स्टेटमेंट विद वेरियस नंबर ऑफ एग्जांपल्स, and you also use the case statement. With the help of your particular example of your marks, you can choose the various number of choices, and as per the number of choices you can declare the particular input to your variable temp. ठीक है। नेक्स्ट यू कैन से null. If you use a null statement in your example, after the null you can not use any statement, and the any statements not came under your execution. And also you can use the loop statement. तो loop statements के बारे में तो आपको अच्छे से पता है. We can explain the loop statement with the help of your for loop, or you can say simple loop, and also explain with the help of some boolean expression, or you can say with the help of your while loop. And last one is called your loop label. And also use the exit statement here when the sum is less than 100. तो मैक्सिमम एग्जाम के अंदर इनके ऊपर क्वेश्चन आता है. यू कैन राइट द शॉर्ट नोट ऑन इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, आइदर exit statement, null statement. So every phenomenon that should be described with the help of syntax, and plus your one example of that particular statement which are came under in your process statement. So today I will explain many statements like loop, else if, while. Clear? Because so that statement you can share with other one, or you can say present on the paper with the help of syntax plus its example to scoring your marks in your exams. ठीक है। तो अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.